Hello, good afternoon, all of you. My name is Anil Kumar, lecturer, Department of Mechanical Engineering, IIMT College of Polytechnic, Greater Noida. Here I will discuss, my topic is machine design. Uh, Introduction of machine design. Then, first of all, machine design, they are derived two words, machine plus design. So, first of all, what is design? Design is to formulate a plan, satisfy a particular need, and to create something with physical reality. Realization of concept or idea into a configuration. Design is the creation of a plan or convention for the construction of an object, system, or design. Is to formulate a plan, satisfy a particular need, and to create something with physical reality. Realization of a concept or idea into a configuration. Design is the creation of a plan or convention for the construction of an object, system or measurable human interaction. तो हम यहाँ डिज़ाइन के बारे में समझ समझ रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर द many types of design we use. First of all, computer aided design, CAD, empirical design, element design, rational design, industrial design, system design, optimum design. अगेन, व्हाट इज द मशीन? इससे पहले हमने डिज़ाइन के बारे में जाना, अब हम मशीन के बारे में जानेंगे. मशीन क्या होती है? तो मशीन इज डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टिंग बॉडीज with successfully constrained relative motion, which is used transform other form of energy into mechanical energy or transmit and modify available energy to do some useful work. An apparatus using mechanical power and having servile parts, each with a definite function and together performing a particular task. Semi or fully automated device that magnifies human physical and or mental capabilities in performing one or more option. What is machine design? So machine design is the process of creating new machines or improving existing ones by applying engineering principles, creativity, and practical consideration. Machine design is a complex process that requires the use of various methods to achieve the desired result. Machine design in general is concerned with development of power, source, and functional mechanism. However, designers invariably specialize. They may concentrate on such areas as a design of engines or turbines or the functional portion of automobiles, machine tools और ऑटोमेशन इक्विपमेंट. जो हमारी मशीन होती है, मशीन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़े होते हैं, जैसे कैम शाफ्ट हो गया, तुम्हारा क्रैंक हो गया, व्हील हो गए और
सिलेंडर हो गया, पिस्टन हो गया, दे आर द वेरियस मैनी पार्ट्स अटैच इन कंप्लीटली मशीन्स। और हर एक अपने पार्ट का एक अलग अलग फंक्शन होता है मशीन के अंदर। तो मैनी पार्ट्स असेंबल इन मशीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन डिज़ाइन। तो मशीन डिज़ाइन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन डिज़ाइन में फर्स्ट है एडेप्टिव डिज़ाइन। एडेप्टिव डिज़ाइन, डेवलपमेंट डिज़ाइन और न्यू डिज़ाइन। तो फर्स्ट एडेप्टिव डिज़ाइन। एडेप्टिव डिज़ाइन के अंदर द डिज़ाइनर वर्क इज कंसर्न with adaptation of existing design. The designer only makes minor alteration or modification in the existing design of the product. Means adaptive design, suppose that ऑलरेडी एक डिज़ाइन मार्केट में अवेलेबल है, तो एक डिज़ाइनर उसके अंदर छोटा सा माइनर एक मॉडिफिकेशन करने के बाद एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट होता है, जिसको हम एडिप्टिव डिज़ाइन बोलते हैं। सेकंड इज द डेवलपमेंट डिज़ाइन। दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन नीड्स considerable scientific training and design ability in order to modify the existing design into a new idea by adopting a new material or different method of manufacture. The designer start from the existing design, but final product may different quite markedly from the original product. मीन सपोज दैट आपने एक साइकिल ली, साइकिल के साथ आपने किसी इंजन को जोड़ दिया, देन साइकिल प्लस इंजन को यदि आप ऐड करते हैं तो उन दोनों को मिलने से एक मोटरसाइकिल बनती है। दैट इज द डेवलपमेंट डिज़ाइन। थर्ड लास्ट वन, न्यू डिज़ाइन। दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन lot of research, technical ability and creative thinking। यदि आप कोई भी न्यू डिज़ाइन बनाते हैं जो इससे पहले पास्ट में और प्रेजेंट में मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आपको एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए आप एक इनोवेटर की तरह आपको काम करना होगा। आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेटिव आइडिया और पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर आप उस डिज़ाइन को डेवलप करोगे। दैट इज़ द न्यू डिज़ाइन। फैक्टर टू बी कंसीडर इन मशीन डिज़ाइन। मशीन डिज़ाइन के अंदर बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं, जैसे टू डिसाइड द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, मटेरियल का सिलेक्शन, फोर्स ऑन द एलिमेंट्स, साइज, शेप एंड स्पेस रिक्वायरमेंट, वेट ऑफ द प्रोडक्ट। सपोज दैट आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, किसी मशीन को बना रहे हैं, तो उस मशीन के अंदर जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं उन एलिमेंट्स पर एक दूसरे पर कितनी फोर्स लग रही है, उस फोर्स को हम बैलेंस करेंगे। फिर उसके बाद मटेरियल है, मटेरियल कौन सा मटेरियल आप सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे आप बॉडी के लिए कौन सा मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हो, इंजन के लिए कौन सा मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हो, जो आप एलॉय व्हील बना रहे हो उसके लिए कौन सा मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हो। फिर फोर्स ऑन द एलिमेंट, एलिमेंट के ऊपर जो एलिमेंट्स लगे हैं उनके ऊपर कितनी कितनी फोर्स लग रही है। साइज है, साइज क्या है, एज पर जो आपका डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग हमें इंडिविजुअल एवरी एलिमेंट जो भी होगा उसका हमें साइज का ध्यान रखना होगा पूरे अच्छे तरीके से। शेप एंड स्पेस रिक्वायरमेंट, हमें उसकी शेप का ध्यान रखना होगा और वो ज़्यादा स्पेस रिक्वायर ना करे। वेट ऑफ द प्रोडक्ट, और जो वेट है प्रोडक्ट का वो लाइट होना चाहिए। जो फिर फैक्टर टू बी कंसिडर इन मशीन डिज़ाइन, द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द कंपोनेंट एंड देयर असेंबली, how will it operate, reliability and safety aspects, inspectability, maintenance, cost and aesthetics of the design product। जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिज़ाइन। देखो हम जब कोई भी मशीन डिज़ाइन करते हैं
उसके लिए हमें एक जनरल प्रोसीजर को अपनाना होता है। वन बाय वन हमको प्रोडक्ट का डिज़ाइन करना होता है, देन हम उसका मास प्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले हम डिज़ाइनिंग करते टाइम हम फर्स्ट हमारा पॉइंट होता है नीड और एम। जो हम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, हमारी क्या ज़रूरत है, जो हमारे पास क्लाइंट आया उसकी रिकमेंडेशन क्या है, वो किस तरीके का डिज़ाइन चाहता है हमसे। तो सबसे पहले हम उसकी जो नीड है उसको समझेंगे। देन इसके बाद हम सिंथेसाइज मतलब मैकेनिज्म, उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे, किस तरीके से कैसे कैसे पार्ट को हमें जोड़ना है, ऐड करना है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ फोर्सेस, फिर जो हमारे पार्ट लगे हुए हैं उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर कितनी कितनी फोर्स लग रही है एक दूसरे पर, हम उसको बैलेंस करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। फिर मटेरियल सिलेक्शन, मटेरियल कौन सा मटेरियल हमें यूज करना है, जैसे मैं पहले भी अभी मैंने आपको बताया कि हमें कौन सा मटेरियल किसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारा डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट्स मीन्स साइज एंड स्ट्रेसिस। जो हमारे एलिमेंट्स हैं, एक कंप्लीटली एक मशीन के अंदर जो छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलकर जो बनी हुई है, वो जो एलिमेंट्स हैं उनका हमें साइज और उनके ऊपर क्या फोर्स लग रही है उसको हमें प्रॉपर चेक करना होगा बाय द हेल्प ऑफ मैनी सॉफ्टवेयर्स, कैलकुलेशंस, टेक्निकल कैलकुलेशंस, टेक्निकल मेथड्स। देन यदि हम उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, देन वो फर्दर हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट जब हमारा पूरा कंप्लीटली एक जो डिज़ाइनिंग है जब वो हमें समझ में आ जाती है, देन उसके बाद हम उसकी क्या करते हैं, डिटेल ड्राइंग बनाते हैं। मीन्स विद द हेल्प ऑफ मैनी सॉफ्टवेयर्स हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जैसे ऑटो कैड हो गया हमारा, एन एक्स हो गया, कैटिया हो गया, सॉलिड वर्क्स हो गया। हम इनके थ्रू किसी भी मशीन की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इजीली। देखो इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि यदि आप डायरेक्ट आप किसी मटेरियल को डायरेक्ट किसी प्रोडक्शन करते हो, यदि उसमें सपोज दैट कुछ आपको चेंज भी करना है तो वो आप चेंज करोगे तो हमारा जो मटेरियल है वो वेस्ट होगा। इसलिए हम कैड पे डिज़ाइनिंग करते हैं, यदि हमें कुछ चेंजेस भी करने हैं तो ईजिली चेंजेस कर सकते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ मटेरियल्स। अगेन जब वो हमारी ड्राइंग वेरीफाई है कि हाँ ड्राइंग हमारी ओके है, चेक बाय द हायर अथॉरिटीज़, देन आफ्टर प्रोडक्शन देन हम उसका प्रोडक्शन करते हैं। बेसिक प्रोसीजर ऑफ मशीन डिज़ाइन में मार्केट सर्वे, डिफाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, study alternate mechanism for the product, select proper mechanism, prepare general layout of configuration, and select joining method of individual product, design individual components, prepare assembly and detailed drawing, and modify drawing after testing prototype models. Basic procedure of design of machine element means जो हम मशीन के अंदर एलिमेंट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनकी क्या एक प्रोसेस है, हम उसको किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो फर्स्ट स्पेसिफाई द फंक्शन ऑफ एलिमेंट। जो भी हम एलिमेंट किसी एक सिंगल एलिमेंट तो उसके हम फंक्शन के बारे में स्पेसिफाई करेंगे। देन डिटरमाइन द फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट, उस फोर्स उस एलिमेंट पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। सेलेक्ट द सुटेबल मटेरियल फॉर द एलिमेंट, फिर उस एलिमेंट के लिए हम सिलेक्शन करेंगे, मटेरियल का सेलेक्ट करेंगे सिलेक्शन। डिटरमाइन द फेलियर मोड ऑफ एलिमेंट, और वो जो एलिमेंट है वो किस तरीके से फेल हो सकता है उसकी भी हम स्टडी करेंगे। डिटरमाइन द ज्योमेट्रिक डायमेंशन ऑफ द एलिमेंट, प्रॉपर उसकी हम डायमेंशन चेक करेंगे। सपोज दैट आप कोई पिस्टन डिज़ाइन कर रहे हो तो पिस्टन डिज़ाइन करते क्या उसका हमें डायमीटर लेना है, क्या उसके लिए मटेरियल का सिलेक्शन करना है, और उस पिस्टन के ऊपर कितनी फोर्स एक्टिंग करेगी, और उसकी क्या डायमेंशन है। फिर अगेन हम उसको क्या मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे मॉडिफाई डायमेंशन फॉर द असेंबली एंड मैन्युफैक्चर एंड चेक डिज़ाइन एट क्रिटिकल क्रॉस सेक्शंस। अगेन लास्ट वन, प्रिपेयर वर्किंग ड्राइंग ऑफ एलिमेंट। आफ्टर द लास्ट जब हमें
सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, किस तरीके से ये काम करेगा, कितनी इस पे फोर्स लगेगी और ये किस तरीके से हमारा जो एलिमेंट है ये फेल हो सकता है। देन हम फाइनल उसकी हम ड्राइंग को क्रिएट करते हैं। ड्राइंग इज़ द फाइनल। कोई भी हम चेंजेस कर सकते हैं, वो ड्राइंग के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, उससे हमारा मटेरियल का जो वेस्ट होता है वो सेफ हो जाता है। अगेन, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन एलिमेंट। जो हमारी मशीन के अंदर जो एलिमेंट है उनकी क्या क्या, जैसे स्ट्रेंथ है, रिजिडिटी है, वेयर रेजिस्टेंस है, मिनिमम डायमेंशन है एंड वेट, मैन्युफैक्चरेबिलिटी, सेफ्टी, कॉन्फॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड। तो हम यहाँ पर ये सारे जो हमारे पास फैक्टर हैं यूज करते हैं डूरिंग द डिजाइनिंग ऑफ मशीन एलिमेंट। मटेरियल सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मटेरियल फॉर द मशीन कंपोनेंट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ मशीन डिज़ाइन। आप सपोज दैट कोई इंजन डिज़ाइन कर रहे हो और जहाँ पर हमारे सिलेंडर के अंदर कंबशन होता है उसका जो टेम्परेचर होता है इंटरनल हायर टेम्परेचर होता है, और सपोज दैट आपने पिस्टन का जो मटेरियल सेलेक्ट किया वो एक इस तरीके से एक ऐसा मटेरियल सेलेक्ट कर लिया यदि उसका जो इनर टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस है, बट जो हमारा पिस्टन है उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, जो मटेरियल चूज़ किया, तो आपका वहाँ पिस्टन क्या होगा, तुरंत मेल्ट हो जाएगा, इंजन फेल हो जाएगा आपका। तो डूरिंग द प्रेशर और टेम्परेचर को हम माइंड में रखते हुए इन चीज़ों का हम डिज़ाइन करते हैं। अगेन, द बेस्ट मटेरियल इज वन विच विल सर्व द डिज़ायर पर्पज एट मिनिमम कॉस्ट। मतलब जो आप मटेरियल का सेलेक्ट कर रहे हो हायर कॉस्ट ना हो, उसकी मिनिमम कॉस्ट में अच्छी से अच्छी उसकी क्वालिटी हो। फैक्टर्स कंसीडर्ड while selecting the materials: availability, material should be readily available in market in large enough quantities to meet the requirement। जो मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हो आप इजीली अवेलेबल हो मार्केट में। अब आपने सपोज दैट कोई ऐसा मटेरियल सेलेक्ट कर लिया जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, तो उससे हमारा कस्टमर भी परेशान होगा। अगेन, कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कोई आपने प्रोडक्ट बनाया और उसकी हायर कॉस्ट है और मार्केट में जो उसके जो और भी सब्सटीट्यूट्स हैं जो उससे इजीली अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है, तो आपके प्रोडक्ट वो नहीं खरीदेंगे। इसलिए हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना होगा। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे स्ट्रेंथ हो गया, डक्टिलिटी हो गया, ब्रिटलनेस हो गया, फटीग हो गया। दे आर द मैनी प्रॉपर्टीज इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। सॉफ्टवेयर यूजिंग इन मशीन डिज़ाइन फॉर डिज़ाइनिंग। हम जब मशीन डिज़ाइन में हम मशीन को डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ऑटो कैड है, सॉलिड वर्क्स है, यूनिक ग्राफिक्स एनएक्स, कैटिया, ऑटोडेस्क इन्वेंटर। सपोज दैट फॉर एग्जांपल यदि हम कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले हमारे पास एक स्पेसिफाई रिक्वायर्ड एरिया होता है। सपोज दैट हमारे पास एक 100 गज का प्लॉट है और हमारे पास एक ड्राइंग पहले से ही हमारा एक नक्शा बना हुआ है कि इतने फुट की यहाँ पे ये होगा, गैलरी होगी, इतने बाय का रूम होगा। तो दैट इज़ द स्पेसिफाई प्री मैप हमारे पास होता है, जिसमें हमारी मिस्टेक होने की कम से कम चांस होते हैं। आप बिना मैप के यदि कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हो या कोई भी प्लानिंग के विदाउट आप कोई मशीन बनाते हो तो उसमें 90% गलत होने के चांस होंगे। फेल होगी आपकी मशीन, फेल होगी, आपका बिल्डिंग गिर सकती है। तो इसलिए हमें डिज़ाइनिंग, जो मशीन डिज़ाइनिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है मशीन के अंदर। तो सॉलिड वर्क्स है, यूनिक ग्राफिक्स है, कैटिया, ऑटोडेस्क, बहुत सारे हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। स्कोप ऑफ मैकेनिकल डिज़ाइन फील्ड। The scope of mechanical engineering in India is based with the opportunities available in
various sector like automobile, aerospace, energy, कंस्ट्रक्शन एंड मैनी मोर। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल, एक प्लॉट का एग्जांपल मैंने देके बताया, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा यूज है। जो भी हम कार, स्कूटर, बाइक खरीदते हैं, इनके अंदर पूरी मशीन डिजाइनिंग होती है। एरोस्पेस हो गया, एरोस्पेस के अंदर एरोडायनेमिक्स, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन हो गया, मैनी मोर्स। अगेन मैकेनिकल इंजीनियर्स आर इन हाई डिमांड इन इंडिया and the field offer good job prospect and competitive salaries. Some application of machine design, जैसे बेयरिंग बनाने में, की जॉइंट्स, फ्लैंज कपलिंग, शाफ्ट। ये जो मैंने पांचों में आपको बता रहा हूँ, बेयरिंग की, जॉइंट्स, फ्लैंज कपलिंग, शाफ्ट, इंडिविजुअल के लिए हमें एक पूरी प्रॉपर ड्राइंग बनानी होती है, जिसके अंदर उसकी डायमीटर कितनी है, इनर डायमीटर कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, प्रॉपर हमें डिज़ाइन करना होता है। थैंक यू।